વડગામના ધારાસભ્ય અને દલિત નેતા તરીકે જાણીતા જિગ્નેશ મેવાણીની એક ટ્વીટ કરવા બદલ આસામ પોલીસે ધરપકડ કરી હતી। 20 એપ્રિલે તેમને અમદાવાદથી ગુવાહાટી લઈ જવામાં આવ્યા હતા। આજે આ વિડીયોમાં એ જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું કે તેમના કેસમાં આગળ શું થશે, શું ચાલી રહ્યું છે। તો જિગ્નેશ મેવાણી પર કોકરઝાર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે। તેમના પર આઈપીસીની કલમ 120B જે છે ગુનાહિત કાવતરું, કલમ 153A બે સમુદાયો વચ્ચે દુશ્મનાવટના વધારાને પ્રોત્સાહિત કરવી, કલમ 295A કોઈપણ વર્ગના ધર્મનું અપમાન કરવાના ઇરાદે પૂજા સ્થળને નુકસાન પહોંચાડવું કે અપવિત્ર કરવું, કલમ 504 જે છે ઇરાદાપૂર્વક જાણી જોઈને અપમાન કરી શાંતિ ભંગ કરવી અને 506 ગુનાહિત ધમકી અને આઈટી એક્ટની કલમો હેઠળ તરત જ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા। જિગ્નેશના સહયોગી અને વકીલ પ્રતિક રૂપાલાએ બીબીસી સાથે વાત કરતા કહ્યું કે તેમના પર લાગેલી કલમોમાંથી 120B સિવાયની બધી જ બેલેબલ છે। તેમના 3 દિવસના રિમાન્ડ પૂરા થાય તે બાદ તેમને મજિસ્ટ્રેટ સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવામાં આવશે। જ્યારે પ્રતિકને પૂછવામાં આવ્યું કે 3 દિવસના રિમાન્ડ બાદ કેસમાં આગળ શું થશે, તો તેમણે કહ્યું 3 બાબતો છે જે ઘટી શકે છે। 1, આગળ વધુ રિમાન્ડ માટે અરજી કરી તેમના રિમાન્ડ લંબાવવામાં આવે, 2, તેમને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવે અને 3, કદાચ તેમના જામીન પણ મંજૂર થઈ શકે છે। એવા કેસમાં જિગ્નેશ મેવાણી મુક્ત પણ થઈ શકે છે। જિગ્નેશ મેવાણીની ધરપકડ માટે ક્રિમિનલ પ્રોસિજર ફોલો કરવામાં નથી આવીના આરોપો લગાવતા પ્રતિક રૂપાલાએ કહ્યું હતું કે તેઓ એમએલએ છે। સામાન્ય કેસમાં ગુજરાત બહારની પોલીસ જ્યારે ધરપકડ કરવામાં આવે તો તેમના જ્યુડિશિયલમાં જાણકારી આપે છે, સ્થાનિક પોલીસને સાથે રખાય છે, સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનની ડાયરીમાં નોંધ થાય છે જેથી અપહરણ નથી થયું તે રેકોર્ડ પર રહે। આમાં વિધાનસભા અધ્યક્ષને પણ જાણકારી આપવી પડતી હોય છે, પરંતુ આસામ પોલીસ ડાયરેક્ટ પાલનપુર સર્કિટ હાઉસ પહોંચી જઈ તેમની અટકાયત કરી લે છે। 20મી એપ્રિલે જિગ્નેશ મેવાણીની આસામ પોલીસે ધરપકડ કરી તે બાદ ગુજરાત વિપક્ષે 23મી એપ્રિલે ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું અને સરકાર ગેરબંધારણીય રીતે વર્તવાનું તથા પ્રજામાં ભયનો માહોલ ઊભું કરવાનું બંધ કરે તેવી કાર્યવાહી હાથ ધરવા માટે રાજ્યપાલને દરખાસ્ત કરવામાં આવી હતી। બીજી બાજુ અમદાવાદમાં જિગ્નેશ મેવાણીને મુક્ત કરાવવા માટે 23મી એપ્રિલે તેમના સમર્થકોએ વિરોધ પ્રદર્શનો પણ યોજ્યા હતા અને મંગળવારે સાંજે પણ પ્રતિકાર રેલીનું આયોજન કરી જિગ્નેશ મેવાણીને આઝાદ કરાવવા માટે માંગ કરવામાં આવશે। Breaking news from the national capital ahead of the Delhi elections. Minister of State for Finance Anurag Thakur has just been caught on camera saying at a rally in Delhi, "Desh ke gaddaron ko goli maro" or fire bullets at the traitors of the country. He also hit out at Delhi Chief Minister Kejriwal, asking him if he would allow a Shaheen Bagh in his area. देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये कौन है गद्दार? पप्पू को भूल गए? ये दोनों ऐसे हैं कि इमरान खान से कड़ी शुरू होती है और राहुल गांधी केजरीवाल तक सारे चलती है। बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी के भड़काऊ बयान देने वाले नेता कपिल मिश्रा को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। कपिल मिश्रा का दावा था कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, लिहाजा उन्हें सिक्योरिटी दी गई है। कपिल मिश्रा वही शख्स हैं जिन्होंने दिल्ली चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान का जहरीला बयान दिया था। कपिल मिश्रा जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा से पहले एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिस पर तमाम सवाल खड़े हुए। हालांकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव मॉडल टाउन से लड़े थे और चुनाव हार गए थे, लेकिन जो बयान और वो बयान जिस तरह से विवादों में घिरे, उसके बाद कपिल मिश्रा ने लगातार सोशल मीडिया पर भी ये शिकायतें की थी कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, उन्हें खतरा है। अब उन्हें दी गई है Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। चिराग गोटी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। चिराग, विवादित बयानों के साये में कपिल मिश्रा रहे और उनके बयानों पर विपक्ष ने भी जो है जबरदस्त सवाल खड़े किए, लेकिन अब खबर यह कि Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल रही है उन्हें। पुलिस से गुहार लगाई थी क्योंकि जिस तरह से उनको धमकियां मिल रही थी, उन्होंने ट्वीट भी किया था और इसके बाद उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई थी कि उनको सुरक्षा दी जाए क्योंकि उनका काफी मूवमेंट रहता है
तो इस बेस पर उनको Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली है। राउंड द क्लॉक 6 पुलिसकर्मी जो है उनके साथ रहेंगे और 8-8 घंटे की शिफ्ट में रहेंगे। तो ये साफ है कि जो उन्होंने ट्वीट किया जिसके बाद उन्होंने क्योंकि जो धमकियां लोग दे रहे थे उनका भी साफ साफ कहना था कि जिस तरह से हिंसा भड़की उसमें उनका रोल है, उन्हीं की वजह से जो है काफी लोग भड़के। लेकिन हालांकि कपिल मिश्रा इससे डिनाई कर रहे हैं। लेकिन चूंकि मौजपुर चौक पर और रविवार को जुट गए थे, वहां पर उन्होंने डीसीपी वेद सूर्या जो नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी उनके सामने कहा था कि 30 दिन तक अगर नहीं खाली कराया गया जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को तो वो उसके बाद हम दिखाएंगे हम क्या कर सकते हैं। और देखिए चिराग, कई बार ऐसा भी होता है कि सुरक्षा जो है वो आपके संवैधानिक पद या जिस पोस्ट पर आप हैं उसके साथ आती है, लेकिन यहाँ मामला दूसरा है। चलिए चिराग से हम आगे फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन धमकियों के मद्देनजर कपिल मिश्रा को दी गई है अब Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, जिसकी जानकारी इस वक्त चिराग भी हमें दे रहे थे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जान ले यह गांव का जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो की जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़त बा। ठीक है ना? ठीक है। वो गद्दार है, वो जयचंद की नाजायज औलाद है, वो अपने बाप की औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए। अच्छा बताओ यह गाँव क्या जयचंद है? क्या क्यों है? तेरी नाम नोट करके हमें बताया तो ठीक है। तेरी हम बनवाई, तेरी उनके रंगवा हम टेस्ट कराई, उनके खुलवा टेस्ट कराई कि ओरिजिनल हिंदू हो कि कोनो मियाँ का भैया जयचंद लोगों का तो आप जानते हो, का बताओ। नहीं तो तभी उनके DNA टेस्ट कराई। हाँ दिन गए। ठीक है, नमो हमें बताए दियो बिहार नोट करके धीरे से हम जाना बस क्यों नहीं जाना। मोनू चौधरी तरी तू एक गाँव आकर चंदन के नहीं समझाए दो कि भाई ठीक कह लो ना, बड़ा निर्णय हुई है पेड़ारी में। ठीक है ना? कलरबो नहीं और क्या है तुम्हारे साथ? ठीक है ना? कल परसों में आएगा तो देख के नहीं समझा दे सकता, नहीं तो हम पकड़ पकड़ करके पतवार कहा की है जयचंद है पेड़ारी के। और अब खबर कर्नाटक से, जहां पंचायती राज मंत्री ईश्वरप्पा ने विवादास्पद बयान दिया है। उनका कहना है कि अब बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई है कि अगर इसके एक कार्यकर्ता को कोई मारता है तो उसी डंडे से वो 2 को मार सकता है। बयान ईश्वरप्पा ने केरल में संघ और वामपंथी दलों की हिंसक झड़प को लेकर दिया है। कर्नाटक के पंचायती राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा के शिवमोगा में दिए बयान को सुनिए। पहले अगर किसी बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला होता तो हमें कहा जाता था कि चुप रहिए, लेकिन अब हम कहते हैं कि उसी डंडे से जवाब दीजिए, 1 के बदले 2 को मारिए। हम इतने ताकतवर हो गए हैं। केरल में लंबे अरसे से संघ और वाम दलों के बीच चल रहे खूनी संघर्ष के सिलसिले में ईश्वरप्पा ने ये बयान दिया। एक मंत्री का हिंसा को समर्थन करने वाले बयान से विवाद खड़ा हुआ, लेकिन ईश्वरप्पा अपने स्टैंड पर कायम रहे। ऐसा हुआ तो प्रोहिबिटिव ऐसा ही सुनो, मुझे कुछ भी उसके बारे में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम है। कर्नाटक की नई सरकार के गृह मंत्री अरगा नायेंद्र भी नए हैं। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि एक मंत्री ने कानून की जगह हिंसा का समर्थन किया है, क्या कार्रवाई होगी, इस पर उनका जवाब सुनिए। ईश्वरप्पा एक वरिष्ठ नेता हैं और किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही है, उनसे पूछने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। ईश्वरप्पा, तेजस्वी सूर्या, यतनाल और अनंत कुमार हेगड़े कर्नाटक बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो हमेशा विवादास्पद बयान देते रहते हैं और कई बार पार्टी खुद को इन बयानों से अलग कर लेती है। लेकिन ईश्वरप्पा जैसा वरिष्ठ मंत्री जो खुद कानून बनाता है, वो कानून की जगह अगर खून खराबे का समर्थन करता है तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया।